السلام علیکم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ایجوکیشن انکلوسیو سوسائٹی کے میرے ساتھی پرنسپل عبداللہ صاحب، ہیڈ مس، تمام سپروائزر اور تمام ٹیچرز، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ٹیچرز ڈے کی مبارکباد دوں گا. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو، جو آپ کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو جو جملہ کہتے ہیں، آج میں وہی آپ کو دہراتا ہوں کہ آپ کی کتابوں کو بند کرو اور بلیک بورڈ کی طرف دیکھو. اور یہ آپ کی کتابیں جو آپ کے ہاتھ میں ابھی موبائل ہے وہ بند کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو میں کہتا ہوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹیچر کی اہمیت، ان کی ضرورت، اس سے جو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. بہت جاہل شخص ہوگا جو سماج کے اندر آپ کے امپورٹنس کو نگلیکٹ کرے. جس طرح آج ہم ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، آپ کے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے. جس طرح ہمارا عید کا دن ہوتا ہے، اس دن بھی ہم بہت خوش رہتے ہیں. لیکن عید کا دن اس کے لیے ہوتا ہے جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلبتا ہے. تو ٹیچرز کے لیے بھی جو ایک احتساب ہے کہ کہاں پر آپ نے غلطی کی، کہاں پر لاپرواہی کی، کہاں جان بوجھ کر اور کہاں نہیں جانا آپ نے غفلت میں ہو گئی. تو اس کا اپنا احتساب کریں اور جو ہے آنے والے کل کے لیے اچھا ایک پروگرام بنائیے. ماشاءاللہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ جیسے لوگ جو اپ گریڈ ہونے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، ہیڈ مس ہے، سپروائزر ہے، آپ لوگ ہیں، جس طرح سے آپ کی جو کوشش ہے اور جس لگن سے اور جس جوش سے آپ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم کو جو ہے ضرور کامیاب ہوگی. دیکھیے، غلطیاں کرنا کوئی اہم نہیں ہے، لیکن غلطیاں کر کے اور اس کا احساس ہو کر اس پر اڑے رہنا اہم ہوتا ہے. تو اس بات کو جاننا کہ جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس میں آیت میں گنا نہیں جائے گا اگر اس کو آپ مٹانے کی کوشش کریں. دیکھیے، ہر انسان میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے ہم کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. عدالتوں سے بری ہونا کوئی بری ہونا نہیں ہوتا، عدالتوں سے بری ہونا کوئی بری ہونا نہیں ہوتا. معافی مل بھی جائے تو پشیمانی نہیں جاتی. آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں، ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم جان نہیں رہے، لیکن دل کے اندر جو آپ کے کھٹکا ضرور رہے گا کہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں. تبھی تو آپ کو اس کا احساس ہوگا. دوسری بات میں کہتا ہوں، کام ایسا کرو کہ کام ہی آپ کی شناخت بن جائے. اور اس کہاوت میں جو ہے عملی جواب پہنایا ایک چھاپرا کی ٹیچرز، جو پیشے سے ٹیچر تھی، چھاپرا بہار کے اندر ہے. لشکر پیر ہائی اسکول کی وہ ٹیچرز تھی. اس کو بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا، بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، اس کا شوق تھا. اور کبھی جو ہے وہ ایبسنٹ نہیں رہی تھی. اور اس نے جو ہے جب اس کی شادی نہیں ہوئی اصغر علی انجینئر، اصغر علی رضوی سے پٹنہ میں، تو گھر کے اندر جو مختلف رسم و رواج چلتے ہیں، ایک مہینہ پہلے اس کی شادی کے، تو اس نے کبھی جو ہے اسکول سے غیر حاضر نہیں اور کبھی اس فنکشن میں شامل نہیں ہوئی. دلہن جو ہے اسکول میں پڑھا رہی ہے اور فنکشن اس کے گھر پر ہو رہے ہیں. یہ اس کا طریقہ تھا. تو جب اس کا پوچھا گیا تو
तितर फातिमा। उसने कहा कि देखिए मेरा शौक बच्चों को पढ़ाना है और ये जो है फजूल रस्में रिवाज इसको में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं और मैं ये कोई अलग काम नहीं कर रही हूँ। हुकूमत ने जिस काम के लिए मुझे मुकर्रर किया और जिसकी मैं तनख्वाह ले रही हूँ उसको मैं अदा करूँ। और ये काम जो है उसने शादी के रोज तक स्कूल और बच्चों को पढ़ाया और विदाई के दिन भी वो स्कूल आई, बच्चों को पढ़ाया और चॉकलेट बांटा और वो उन बच्चों से विदाई। बिहार गवर्नमेंट ने उसको जो है डिविजनल डिपार्टमेंट एजुकेशन के अवार्ड से नवाजा, क्योंकि उसका नाम हो कोई बड़ी नहीं थी, कोई ऐसा काम नहीं थी कि भाई प्रेसिडेंट बनी तो नाम हो, ऐसा टीचर्स में उसका नाम है। सिर्फ इतना वक्त था कि वो जो है अपने काम से काम करती थी, मतलब अपने फर्ज को उसके अदा। तो बड़े होने के लिए कोई इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं आपको बात बता रहा था। और दूसरी बात यह है, सुफियान हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म आदमी जब तक साहिब इल्म रहता है, आदमी तब तक साहिब इल्म रखता है जब तक वो इल्म की जुस्तजू में रहता है। अगर जिस दिन उसको एहसास हो गया कि मैंने इल्म हासिल किया, उस दिन उसकी जहालत का दौर शुरू होता है। देखिए अभी ज़्यादा ब्रीफ करूँगा तो टाइम जाएगा। आप लोग इंटेलिजेंट है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमको जब डिग्री मिली और नौकरी मिली हमने किताब रख ली और हम जो है किताबों की तरफ नहीं देखते। देखिए डॉक्टर जो है वो हमेशा चेक करते रहता है कि मार्केट में कौन सी नई दवाई, कौन सी बीमारी फैली है, तो उसकी स्टडी करते रहता है। प्रैक्टिस में रहने के बाद एक वकील जो है अपने इसके साथ सोचता है केस में कौन सा जजमेंट देनी चाहिए, पहले जजमेंट इस केस के अंदर क्या जजमेंट दिया था वो रिफर करता है। और आप टीचर, आपका पढ़ाना इन लोगों के लिए है और आपका काम ही पढ़ाना है। तो हम लोग जो है इस बात को वहाँ पर नहीं देते, ध्यान नहीं देते। तो आपका काम बच्चों को जो पढ़ाना है, मेन जो काम आपका है आपको पढ़ना है। स्टेफी ग्राफ जो थी उसका जो ट्रेनर था उसने वो बताया कि मैं 2 घंटे जब उसको सिखाने जाता हूँ तो 8 घंटे में उसको पढ़ता हूँ कि कैसा सिखाया है। ठीक है, आप लोगों को जो है 35 मिनट पढ़ाते हैं ना, यही आप लोगों को कॉम के अंदर ले जाते हैं कि आप क्या पढ़ाते हैं। क्योंकि बच्चे जाकर घरों में बोलते हैं कि बड़ा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, बस के अंदर मैं बोर हो जाता हूँ। देखिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोले तो बस बोल गया। अगर आपके पास टैलेंट है, उसको बता रहे हैं, तो यकीनन अगर वो समझ भी नहीं रहा तो वो आपकी तरफ जरूर देखेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अर्नाल्ड जो थे, अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो कहते हैं, उनसे किसी शागिर्द ने पूछा कि जब तुम लेक्चर देने जाते हो तो बटन का बटन को क्यों करते हो? इतना बड़ा प्रोफेसर कई सालों से पढ़ा रहा है, वो भी लेक्चर में जाने से पहले पढ़ता है। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे शागिर्द को, मैं चाहता हूँ कि मेरे शागिर्द को इल्म के नए चश्मों से सैराब कराऊं। मैं नहीं चाहता कि सड़ा गला और रुका हुआ पानी पिलाऊं। देखो जो पहले है जो हमने हासिल किया तो वो सड़ा गला गया। तो हमको क्या चाहिए कि हमको जो नई नई चीजें जो है पढ़ना चाहिए और वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात ये है, तालीम में 2 चीज होती है, एक इल्म और एक हिकमत। इल्म पहले था, पहले जमाने में इल्म बोलते थे नॉलेज को और हिकमत बोला जाता था अक्ल को, विजडम। अभी चेंज हो गया इसकी मीनिंग, अभी इल्म हो गया इंफॉर्मेशन। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, और हिकमत हो गई स्किल, आपके पास क्या है। तो ये नए नए लोग जो है ये बच्चों को जो सिखाया ये चाहिए। दूसरी जो बात
ये जो अमेरिका का एक आर्किटेक्ट था, उसने ये चार्ट बनाया था। और उसका ये था कि 19वीं सदी में जो है नॉलेज को डबल होने के लिए 100 साल लगे, और 1945 में उस नॉलेज को डबल होने में 25 साल लगे, और 2018 में नॉलेज को डबल होने में 14 महीने लगे। वो उसका चार्ट था। तो आपने को कितना एडवांस जा रहा है या आप कितने पीछे हैं ये देखो। आईटी के अंदर क्या होता है कि जो आप सर्विस पे लो, लेकिन आपको हर साल जो सर्टिफिकेट कोर्स देना पड़ता है, उसके बाद ही जो है आपको जॉब पर रखा जाता है। और यहाँ पर भी अभी हुकूमत ने किया है कि जो टीटी कोर्स है ये आपके लिए इसीलिए किया है कि आप जो है थोड़े अपग्रेड हो जाए और आप जो है एक इंफॉर्मेशन करें। और इसके बाद भी आप ध्यान रखिए कि ये टीटी जो है इसकी मुद्दत 5 साल है। ये 5 साल के बाद जिन्होंने टीटी दिया है उनको भी दोबारा देना पड़ेगा। तो ये अपग्रेड करने के लिए हुकूमत की पॉलिसी है। तो अब ये नहीं कि हमने पास किया अभी नहीं, तो इसलिए अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है कि अभी तक जो है स्कूलों में टीटी पास टीचर नहीं है। जिस दिन सब टीचर टीटी पास हो गए फिर आपको जो है डबल से 5 साल की मुद्दत में देना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको चाहिए कि हमेशा जो है किताबें पढ़िए और आपके चाहिए। दूसरी बात जो है ज्यादा जो है अपने दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि क्या करो। तो बातें आपके लिए आती है कि आप पहले जो है आपको किताबें पढ़ना चाहिए, आपको किताबों का नॉलेज होना चाहिए, कम से कम जो आपके सब्जेक्ट है, कम से कम और आपके सब्जेक्ट है उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी जो बात है वो है कि जो प्रिपरेशन करना चाहिए। कल जब आप जा रहे हो लेक्चर देने तो खुद को तैयार करो कि बच्चा क्या सवाल करेगा और उसका आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो ये है अपग्रेडेशन का तरीका। देखिए अगर मुझे अपने सेहत बनानी है, बॉडी बनानी है, तो मेरे को अगर नॉलेज है तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। मेरे को खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेरे को खुद जिम जाना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे कि इसने ये कहा, उसने वो जो होना चाहिए वो होना चाहिए, तो कभी आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पढ़ाना है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए तभी क्या करें। तो जो किताबों की बात चलती है, आप क्या लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी किताबें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारे लाइब्रेरी का है मैं ही तकलीफ देता हूँ उनको, कभी मैं टीचर को नहीं देता। ये अगर बोलना उसको पढ़ना है तो कह रहा सरना है, अरे वही बोलता हूँ बोलो सब ये निकालो वो निकालो, ये सब आपका काम है। और दूसरे इम्पोर्टेंट जो बात आपको बोलना चाह रहा था, ये बात जो है मैंने 2017-18 में मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा था कि स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए। उसमें एक सब लिखा मैंने, लेकिन एक पार्ट में लिखता था फिर नहीं बोलता था, फिर नहीं लिखता, उसको कट करता था। उसकी वजह ये थी कि जब ये लोगों में जाएगा तो वो समझेंगे कि इनकी स्कूल में इस तरीके की बात हो रही है, कभी सर नहीं। हालांकि वो हर स्कूल का माहौल कैसा हो वो मैं लिखना चाहता था, लेकिन उसके बाद अभी मुझको एहसास हुआ तो उसको लिखना ही चाहिए था। वो बात ये है कि ये जो ग्रुप बंदी है ना टीचरों के अंदर, ये बहुत नुकसान देती है तालीम को, स्कूल को। ये जो ग्रुप बंदी है ये बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। देखिए किसी के बारे में जाकर तुम किसी को कहते हो, किसी के ऐप को कहते हो, किसी की बुराइयां करते हो, देखो दूसरों को छोटा करने से तुम बड़े नहीं हो जाओगे। उस आदमी की सलाहियत, उसकी लियाकत तभी मालूम पड़ती है जब जाकर वो दूसरों की बुराई करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में सबसे बुरा शख्स वो होगा जो चेहरे रखता है, और दो चेहरे रखता है जो किसी के मुंह पर कुछ कहता है और किसी के मुंह पर कुछ। तो
इस बात को ध्यान रखो, ये सबसे बड़ा गुनाह है और ये सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल को दे रहा है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप गुरुवृत्ति मत कीजिए। और सब एक साथ टीचर्स जो है, और ऐसा भी नहीं है कि ये तो टीचर्स है जो दूसरे स्कूल में है, जो इनामत पाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं, वहीं पर है। अरे हमारे स्कूल के अंदर भी ऐसे टीचर है जिसको किसी से ये लेना देना नहीं, वो अपने काम से काम करते हैं, अपने मेहनत से मेहनत करते हैं, उनको किसी इस चीज में जो है इंटरेस्ट नहीं है। अभी मुझे नाम याद आ गया, मैं कहूँगा कि मैं उसके लिए पेश करूँगा। ऐसा टीचर है हमारे पास, ये बड़ी ट्रॉफी नहीं है सर, ऐसा टीचर्स है जो अपने काम में काम रखता है और कभी किसी की ये नहीं करता। और ऐसे टीचर्स होंगे तो हमारा जो है माहौल जो है अच्छा रहेगा। देखो, उंगलियां उठाने से, उंगलियां यूं ही किसी पर उठाया मत करो, उंगलियां यूं ही किसी पर उठाया मत करो। खर्च करने से पहले कमाया करो, पहले आप फिर दूसरों को तनकीद करो। और आखिर में देखो, आपको मुबारकबाद दे दिया और थोड़ी से इतनी बड़ी महफिल में की है, थोड़ा हम सुधरे, किसी 10-5 लोगों को भी समझ में आ गया कि मैंने क्या बात कही। यकीनन कुछ लोग नाराज भी हो गए कि वो वक्त रुखसत वो शख्स बड़ा सख्त था, वक्त रुखसत उसका